سے پہلے پورے ڈیجیٹل میڈیا پر ایسا پروگرام کوئی صحافی نہ کر پایا، نہ کسی نے کیا، کیونکہ اس وقت میں امام بارگاہ میں موجود ہوں اور یہ باتیں ان کے سامنے کر رہا ہوں کہ اہل تشیع زلجنہ کو سجدہ کرتے ہیں، زلجنہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ زلجنہ کا پیشاب کیوں پیتے ہیں؟ یہ زلجنہ کا پیشاب کیوں پیتے ہیں؟ ہم زلجنہ کے پاس جائیں گے اور جہاں زلجنہ کا باقاعدہ ایک قبرستان ہے وہ بھی دکھائیں گے، زلجنہ کو مرنے کے بعد کہاں دفن کیا جاتا ہے وہ بھی دکھائیں گے۔ زلجنہ کے نام پہ جو گھوڑے بنائے ہوئے ہیں وہ ان کے نیچے سے گزرنے کی اور ان گھوڑوں کو دفنانے کی، ہندو جو کچھ گائے کے ساتھ کرتے تھے ہم توحید کے نام کے اوپر وہی کچھ گھوڑوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ اس وقت ہم آپ کو اس احاطے میں لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں زلجنہ ہوتا ہے۔ یہ جہاں پہ آپ کھڑے ہیں نا، یہیں پہ دفن کیا گیا ہے ہم نے زلجنہ، اسی جگہ پہ، اسی جگہ پہ۔ جھولے، تازیے، ڈولیاں اور زنجیر زنی، آگ پر ماتم، کوئلوں پر ماتم، ان تمام تر باتوں کی حقیقت اہل تشیع مسلک سے جانیں گے۔ آئیے ہمارے ساتھ۔ اہل تشیع میں بدعتیں ہیں، یہ جھولے نکالنا، زلجنہ اور یہ جناب پنجا اور یہ ڈولیاں اور عجیب و غریب قسم کی خرافات جو آئی ہوئی ہیں۔ یہ جو تازیے، ڈولیاں، مہندیاں، پنجے، علم پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی پاک ہے؟ جی یقیناً۔ تو مسجد میں کیوں رکھے ہوئے؟ تو مسجد میں کیوں رکھے ہوئے؟ جو تابوت اور جھنڈے اور یہ ساری بدعات انہوں نے وہ امام بارگاہوں کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اچھا یہ دیکھ لیں، ان کو پتا ہے کہ مسجد میں یہ کام نہیں ڈالنا۔ شیعوں نے امام حسین اور ان کے تمام ساتھیوں کو قتل کیا، بلکہ پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ان کو بددعا دی کہ قیامت تک آپ ماتم کرتے رہو گے۔ تو آپ کو تو بددعا ملی ہوئی بھائی بی بی زینب کی، تو آپ کو تو بددعا ملی ہوئی بھائی بی بی زینب کی۔ جی وہ یزید پیٹا تھا، اس نے کالے کپڑے پہن لیے تھے۔ جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لیڈروں کے گھروں کے باہر بھی تو لوگ ماتم کر رہے ہیں، ان کو سیدہ زینب نے بددعا دی ہوئی ہے، ان کو سیدہ زینب نے بددعا دی ہوئی ہے۔ اپنے جسم کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں۔ یہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ امام حسین کے جسم پہ زخم لگائے گئے، کہ بھئی باقی زخم تو مجھ کو امام حسین کے نہیں معلوم کہ کہاں کہاں ہوں گے۔ ہاں ایک زخم مجھ کو معلوم ہے جو بخاری شریف میں آیا ہے کہ گلا کٹ گیا۔ تو آپ نے اگر محبت کرنی تو ایسے کریں نا، گلا ہی کاٹ دیں، گلا ہی کاٹ دیں۔ بھائی ان کے باقی زخم تو مجھے کنفرم نہیں ہے کہ کدھر لگا تھا۔ ایک والا مجھے کنفرم ہے جو بخاری میں موجود ہے، وہ یہ والا زخم ہے۔ اگر آپ نے کوئی محبت کا اس طرح اظہار کرنا ہے پھر اس طریقے سے کرنا شروع کریں۔ حضرت ویس کرنی نے اپنے دندان مبارک، جب آپ کو پتہ لگا کہ رسول معظم صلی یہ اللہ علیہ واقعہ وسلم جھوٹ ہے بھائی، ہاں یہ اہل سنت میں نہیں ہے۔ یہ واقعہ جھوٹ ہے بھائی، یہ اہل سنت میں نہیں ہے۔ یہ تابوت ہے، مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ یہ تعزیہ ہے، تعزیہ ہم نے روزہ امام حسین علیہ السلام کی شبیہ بنائی ہوئی ہے۔ کہ میں بہت ساری زیارات دیکھ رہا ہوں اور اس حوالے سے آپ مجھے بتائیے یہ سب چیزیں کیا ہیں بھائی؟ یہ جو پنجہ ہم دیتے ہیں یہ حضرت عباس کا وہ ہاتھ ہے جو کربلا میں کاٹ دیا گیا تھا۔ قرآن اور حدیث سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے یہ پنجہ کہاں سے آیا، یہ پنجہ کہاں سے آیا۔ غازی باس کا وہ پنجہ لگایا ہوتا ہے۔ مولا علی خلیفہ راشد رہے ہیں تو رسول اللہ کے پنجے کی شبیہ بنا کے انہوں نے اپنے گھر کے اوپر میں لگائی تھی۔ ٹائم قیامت تک جواب دینا جائے اس گل کا۔ یہاں لوگ آتے ہیں سجدہ نہیں کرتے۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیک۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاتحہ۔ دنیا بھر کے تمام ممالک، شہر و دیہات، گلیوں بازار، کوچہ و مینار، الغرض کونے کونے اور چپے چپے میں جہاں جہاں بھی اس وقت ہم کو سنا اور دیکھا جا رہا ہے، ان تمام ہی کو انتہائی محبت، ادب، عاجزی اور احترام کے ساتھ ڈاکٹر احمد نصیر کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج ڈیجیٹل میڈیا کی ہسٹری کا انوکھا اور منفرد پروگرام لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج سے پہلے پورے ڈیجیٹل میڈیا پر ایسا پروگرام کوئی صحافی نہ کر پایا، نہ کسی نے کیا،
कोई मेजबान इसको निभा पाया और ये कभी इम्कानात हैं कि ना कोई निभा पाएगा। नाज़रीन कराम, मेरे अक़ब में मरकजी इमाम बारगाह कसरे बुतूल आप देख सकते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हाफिज़हुल्लाह चेहलुम एकेडमी में और मेरी तमाम टीम उनकी खिदमत में उनके पॉडकास्ट करने की गर्ज से हाजिर हुए। उन्होंने इंतहाई लतीफ, लजीज और खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया, गम हुसैन अलग चीज, गम हुसैन तो सुन्नत है। तो सर गम तो कभी नहीं खत्म हो सकता। आप गम हुसैन को खत्म करना चाहते हैं, करके बताएं। जनाब 900 साल तक मिंबर आपके कब्जे में रहे हैं, तीनों बराज़म आपके कब्जे में रहे हैं, लेकिन आप आले उमैया और आले अब्बास की बदमाशियों को छुपा नहीं सके। आज हर तरफ हुसैन हुसैन ही है अल्हम्दुलिल्लाह, और दिन ब दिन बढ़ रही है। अब तो कह रहे हैं खुदा के लिए यजीद से हमें लानते करवा लें, यजीद के अब्बा जी को छोड़ दें। अब हाथ पांव पकड़ने पे आ गए। वो ये फरमा रहे हैं कि हुसैन का गम सोग नहीं जो 3 दिन पर मुहित है, बल्कि ये गम है और गम ता क़यामत जारी रहेगा। ये गम तो आका अलैहिस्सलाम को भी रहेगा, क्योंकि आका की आल को काट दिया गया, आका की आल के गले काट दिए गए। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम को तने तन्हा 3 दिन की प्यास के साथ शहीद कर दिया गया। हुसैनियों को हुसैन के गम से मोहब्बत नहीं बल्कि मुवद्दत है। मोहब्बत मरने तक रहती है और मुवद्दत मरने के बाद भी जारी रहती है। क्लिप आपने देख लिया। आज हम अहले तशय्युअ मकतबा फिक्र की जानिब हाजिर होंगे और अहले तशय्युअ मकतबा फिक्र के जो नुमाइंदगान हैं उनकी खिदमत में ऐसे तल्ख सवालात रखेंगे जो आप भी सुनना चाहते हैं। मसलन कि वो ताज़िए निकालते हैं, वो मेहंदी निकालते हैं, वो डोलियां निकालते हैं, वो झूले निकालते हैं। ये तमाम ही बिदआत हैं और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है अहले तशय्युअ मकतबा फिक्र की जानिब से। और इसके साथ साथ नाज़रीन कराम, जुलजिना जो इन्होंने उस घोड़े को इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन के घोड़े से तशबीह दी या निस्बत दी, उसके नीचे से गुजरना, उसको दफन करके उसकी दफनगाह पे सजदा करना और फिर माज़अल्लाह जुलजना का पेशाब पीना और फिर शादीशुदा जोड़े का उसके करीब जाना और उनका फिर निकाह भी टूट जाना। ये तमाम तर खुराफात, ये तमाम तर बातें, ये तमाम तर अकायद जो हैं ये शिया मसलिक की जानिब मंसूब किए जाते हैं और शिया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा मुबैना तौर पर करते भी हैं। इंजीनियर साहब के बहुत सारे क्लिप्स हैं। इंजीनियर साहब डोलियों के हवाले से, मेहंदी के हवाले से, ताजू के हवाले से क्या फरमाते हैं। और ये जो पंजा है, पंजा ये जो मौला गाजी अब्बास के अलम से तस्बीह दी जाती है, वहाँ सर झुकाना, नजरों न्याज रखना, सजदा करना, ये तमाम तर खुराफात हैं और इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। आज हम मसले के अहले तशरीह की जानिब बढ़ेंगे और उनके जो दायरे के नुमाइंदगान हैं उनकी खिदमत में सवालात रखेंगे। आइए हमारे साथ। नाज़रीन कराम, मरकजी इमाम बारगाह कसरे बुतूल में इस वक्त हम हाजिर हो चुके हैं और आप इस वक्त देख सकते हैं ये इमाम बारगाह का इहाता है, ये सहन है और ये डिजिटल मीडिया की तारीख का मुनफरिद प्रोग्राम लेकर आपका मेज़बान डॉक्टर अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। और ऐसा प्रोग्राम आपने पहले ना कभी देखा होगा, ना आप डिजिटल मीडिया की हिस्ट्री में देखेंगे। आप देख सकते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ऊपर लिखी गई है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। मेरे ऐन अक़ब में आप देख सकते हैं ये अलम है और ये पंजा है जिसके बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का ये चैलेंज है कि कुरान से, हदीस से ये पंजा साबित करके दिखाएं। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहलत के बाद, उनकी वफ़ात के बाद, उनके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद अगर मौला अली ने नबी का पंजा अपने छत पे नहीं लगाया तो बाकी फिर पंजे कोई शय नहीं। क्लिप आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो क्या मौला अली जब 5 साल तक, ऑलमोस्ट 5.5 साल तक खलीफा राशिद रहे हैं तो रसूलुल्लाह के पंजे की शबीह बना के उन्होंने अपने घर के ऊपर या मस्जिद नबवी में या कूफे की जामे मस्जिद में लगाई थी? टाइम क़यामत तक जे जवाब देना जे इस गल दा। तो सरकार जे हुजूर दा पंजा नहीं है ना ते और ते कोई पंजा शाही कोई नहीं। जी नाज़रीन कराम, क्लिप आपने देख लिया। मैं आपको इस वक्त अलम दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बहरहाल जो भी है अकीदत तो है, निस्बत तो है, ये अलम है। लेकिन ज़ाहिर है कि अलम आप इस वक्त देख सकते हैं और अलम पर नजरों न्याज भी रखी जाती है। इसके नीचे ये पंजा भी है और आप ये भी देख सकते हैं कि ये चिराग हैं। अकीदतमंद हजरात जो हैं वो अपने मन की मुराद लेकर आते हैं, ज़ाहिर है कि एक वसीला बनाकर अल्लाह से मांगते हैं। हम अल्लामा तसद्दुक नकवी एडवोकेट की खिदमत में हाजिर होंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर ये तमाम तर खुराफात आपके मसलक में क्यों पाई जाती हैं। झूले, ताज़िए, डोलियाँ और जंजीर जनी,
आग पर मातम, कोयलों पर मातम, इन तमाम तर बातों की हकीकत अहले तशय्युअ मसलक से जानेंगे। आइए हमारे साथ। ताज़िए, डोलियाँ, मेहंदियाँ, तमाम तर खुराफात जो इस्लाम को बदनाम कर रही हैं, आपको उनकी ज़ियारत कराएंगे और अल्लामा तसद्दुक़ नकवी एडवोकेट हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि हक़ाइक़ दर हकीकत क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे क्या हाल है अहमद भाई? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ रखिए, बैठिए। आपकी तबीयत ठीक है? जी शुक्र। अल्लामा साहब, कुछ तल्ख़ सवालात हैं और ज़ाहिर है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर, और जो नौजवान हैं और नौजवानों का एक बड़ा तबका इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की बात करता है। वो बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत बाअखलाक हैं, अक़ीदा तौहीद जो है उनका, मैं तो बस यही कहूँगा कि आपसे मोहब्बत है सर। लेकिन ज़ाहिर है कुछ बातें ऐसे भी हैं जो आपके नज़दीक शायद अच्छी ना हो उनकी, लेकिन वो तो हक़ाइक़ बयान करते हैं। मैं आपकी खिदमत में सवालात रखना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। जी, मुझे बताइए कि इमाम बारगाह पाक है? आपका ये अक़ीदा है, यानी इमाम बारगाह पाक है, ये पाक जगह है, तो क्या आप यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं? पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना इमाम बारगाह कसरे बतूल तशरीफ़ लाए। लेकिन नमाज तो इमाम बारगाह में अदा की जा सकती है, इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। नमाजें इंसान घर में भी अदा करता है, अपना पार्क में अदा की जा सकती है, रोड पे अदा की जा सकती है, तो बारगाह में क्यों? बारगाह तो एक मखसूस जगह है। हमने तो इसी इमाम बारगाह नाम उसे रखा इसलिए है कि ये मखसूस जगह है मजालिस के लिए, जुलूस के लिए, अपना मातमदारी के लिए, तो यकीनन ये एक पाक जगह है और यहाँ नमाज भी अदा की जा सकती है। अगर यहाँ नमाज अदा की जा सकती है तो मुत्तसिल मस्जिद क्यों बनाएंगे? नहीं, मस्जिद तो एक अलग, बिल्कुल खुदा का घर कहा जाता है ना मस्जिद को, तो इसलिए अगर हम सारी इबादत जो हैं इमाम बारगाह में कहेंगे तो लोग ये भी कहेंगे कि इनकी मस्जिद कोई नहीं होती। छोटी छोटी बातों पे तो इख्तलाफ क्रिएट होता है, इसलिए मस्जिद अलग बनाई गई ताकि वहाँ पे नमाज अदा की जा सके। और जब भी हमारे पास यहाँ पे नमाजियों की तादाद ज़्यादा होती है तो बाकी नमाजी जो हैं वो सारे के सारे बारगाह में खड़े होते हैं। बिल्कुल सही, बेहतरीन फरमाया आपने। मुझे ये बताइए, इमाम बारगाह पाक है, मस्जिद खुदा का घर है, पाक है, इसमें कोई शक ही नहीं है, इमाम बारगाह भी पाक है। ये जो ताज़िए, डोलियाँ, मेहंदियाँ, पंजे, अलम पड़े हुए हैं, ये भी पाक है? जी यकीनन। तो मस्जिद में क्यों रखे हुए? ताबूत और झंडे और ये सारी बिदात उन्होंने वो इमाम बारगाहों के अंदर रखी हुई होती है। अच्छा ये देख लें, इनको पता है कि मस्जिद में ये काम नहीं डालना, मस्जिद का एक रोब भी है सर। मस्जिद में क्योंकि एक मखसूस अल्लाह का घर है और हमने इसके लिए अपना जो है वो अलग अज़ाखाना, आप देखें अगर यहाँ पे तो ये एक अलग अज़ाखाना हमने बनाया जो इमाम बारगाह से अलग, बिल्कुल हमने एक बाउंड्री कमरा बना दिया, इसका नाम हमने अज़ाखाना रख दिया। और जितनी ज़ियारात हैं वो ताबूत की सूरत में है, वो झूले की सूरत में है, वो ताज़िए की सूरत में है, वो यहीं पे पड़ी हैं, तो मखसूस एक जगह बना दी सही है ताकि जो है वो यहाँ पे रखी जा सके। ठीक है। अच्छा, ये जो ताज़िए हैं, ये जो डोलियाँ हैं, ये जो मेहंदियाँ हैं, ये जो आप ज़ाहिर है कि ज़ियारात बरामद करते हैं, इनके हवाले से भी बहुत सख्त सवालात आज मैं आपसे करने वाला हूँ, ज़रा तैयार रहिएगा। लेकिन उससे पहले करबला में खानवादा रसूल को, आले रसूल को कत्ल करने वाले, शहीद करने वाले, उनका गला काटने वाले शिया थे। शियों ने इमाम हुसैन और उनके तमाम साथियों को कत्ल किया, और ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि फिर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उनको बद्दुआ दी कि क़यामत तक आप मातम करते रहोगे। तो आपको तो बद्दुआ मिली है भाई बीबी ज़ैनब की। मेरे भाई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हज़रत हसन को ज़हर दे दिया गया, सैयदना हुसैन को उनके घर वालों समेत शहीद कर दिया गया, मौला अली तीनों खुलफा के साथ वज़ीर की हैसियत से रहे, जब हज़रत अली की बारी आई तो लोग तलवारें उठा के उनके ऊपर चढ़ दौड़े। जब आप अहले बैत के साथ कॉन्टीन्यूस ये मामला, और फिर सुलह हसन के बाद से लेकर 60 साल तक मिंबरों पे सबो शतम हज़रत अली पे होता रहा, तो सर इस का रिवेंज भी तो सामने आएगा ना। हर अमल का एक रद्द अमल होता है। तो ये कहना जी वो यजीद पीटा था, उसने काले कपड़े पहन लिए थे, ये तो इन्होंने आले उमैया की बदमाशियों को छुपाने के लिए चीज़ें घड़ी हैं। शिया जो पीट रहे हैं, हमारे नज़दीक तो मातम करना हराम है। मेरा तो क्लिप है मातम के ऊपर, मैंने तकरीबन 1 मिलियन के करीब लोग देख चुके हैं मातम के हक में 3 दलाइल और उनका जवाब। लेकिन इसकी रियलिटी को भी देखें, जिस तरह आज आप देख रहे हैं सियासी लीडरों के घरों के बाहर भी तो लोग मातम कर रहे हैं, उनको सैयदा ज़ैनब ने बदवा दी हुई है। नहीं, ये जब मैंने अपना ये प्रोपोगेट है, प्रोपोगंडा किया जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कातिल कभी मकतूल का मातम नहीं करते।
اپنا ایسا نہیں ہو سکتا کہ قتل بھی کیا جائے اور رویا بھی جائے 1400 سال سے ہم قیامت تک روئیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا کہ جو قتل کرتے ہیں وہ روتے بھی ہیں، وہ تو لاشوں پہ کھڑے ہو کے بھنگڑے ڈالتے ہیں، روتا وہی ہے جس کا تعلق ہوتا ہے، جی جی ٹھیک ہے نا، روتے وہی ہیں جن کے تعلق ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، خرافات ہے۔ صرف میں نے اپنا پہلے بھی کئی دفعہ گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ صرف تشیع سے دور کرنے کی ایک سازش ہے، جبکہ یہ دین اسلام ہے اور ہم سارے کے سارے جتنے بھی مسلمان ہیں یہ اسلام کے ایک گلدستے کی صورت میں رہنا چاہیے۔ ہر بندے کا عقیدہ اپنا ہے اور وہ اپنے عقیدے کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، لیکن ایسی باتیں گٹھ جوڑ نہیں کرنی چاہیے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے اور جو ہوتی ہی نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کو تاکہ لوگ قریب نہ آئیں۔ قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے اپنا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفا نہیں کی یا بے وفائی کی ہے، ہم کل بھی ان کے خلاف تھے، ان پہ لعنت کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ بالکل صحیح۔ اچھا علامہ صاحب، میں آپ کی خدمت میں ایک اور سوال رکھنے والا ہوں اور انجینئر صاحب کا یہاں کلپ بھی چلواؤں گا۔ آپ مجھے بتائیے، آپ اپنے جسم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کا ایک عقیدہ ہے، بالکل اہل تشیع، ہم ظاہر ہے کہ اپنا چھوڑیں گے نہیں، آپ کو چھیڑیں گے نہیں، لیکن سوال تو میں دور صافی کروں گا۔ آپ مجھے بتائیے، اپنے جسم کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں اور ماتم بھی کرتے ہیں، یہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ امام حسین کو تکلیف دی گئی، کربلا امام حسین کو کربلا میں تکلیف دی گئی، ان کے جسم پہ زخم لگائے گئے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہاں ایک خوب جملہ کہا، کلپ آپ کی اسکرین پر یہ رہا۔ شیعہ کی کتابوں میں ماتم کو کنڈیم کیا کہ یہ بالکل ایک زنجیر زنی ہے سب کچھ۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی یاد تازہ کر رہے ہیں محبت میں کہ جی ان کو زخم لگائے تھے تو ہم اپنے آپ کو بھی زخم لگائیں، تو میرے بھائی ان کے باقی زخم تو مجھے کنفرم نہیں ہے کہ کدھر لگا تھا۔ ایک والا مجھے کنفرم ہے جو بخاری میں موجود ہے، وہ یہ والا زخم ہے۔ اگر آپ نے کوئی محبت کا اس طرح اظہار کرنا ہے پھر اس طریقے سے کرنا شروع کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جی کلپ آپ نے دیکھا، ان کا کہنا ہے کہ بھئی باقی زخم تو مجھ کو امام حسین کے نہیں معلوم کہ کہاں کہاں ہوں گے، ہاں ایک زخم مجھ کو معلوم ہے جو بخاری شریف میں آیا ہے کہ گلا کٹ گیا۔ تو آپ نے اگر محبت کرنی تو ایسے کریں نا، گلا ہی کاٹ دیں۔ دیکھیں، اب انجینئر محمد علی صاحب کا اپنا نقطہ نظر ہے، میں ان کے نقطہ نظر کو اپنا کیا کہہ سکتا ہوں، ان کی اپنی مرضی ہے۔ میں دیکھیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ ماتم یا زنجیر سے جی اس کا تعلق نہ عشق سے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا عشق ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے عقائد کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ہاں، میں یہ عشق ہے، اور جب جہاں پہ عشق ہو، یعنی محبت جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا، کہتے ہیں وہاں سے عشق شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور عشق میں آ کے انسان، میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ کسی کا اگر کوئی جوان بیٹا مر جائے تو وہ اس وقت پیٹتا ہے اپنے آپ کو، ماتم کرتا ہے، لیکن کوئی اسے اس وقت کچھ بھی نہیں کہتا، سب اسے صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو کربلا میں 6 گھنٹے میں 72 لاشیں اٹھائے گئے ہیں، 6-7 گھنٹے میں 72 لاشیں اٹھائے گئے ہیں، تو وہاں پہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم آپ پر قربان ہو جاتے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ یہ اپنا ایذا پہنچانے والی بات ہے، اپنا زنجیر زنی کر کے، دیکھیے ہمیں ایک واقعہ اسلام کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت اویس قرنی نے اپنے دندان مبارک، جب آپ کو پتہ لگا کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ جھوٹ ہے بھائی، یہ اہل سنت میں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، اب جب کچھ واقعات آپ میں نہیں ہیں یار، وہی کہہ رہا ہوں نا، اب کچھ واقعات آپ میں ہیں وہ ہم نے نہیں ماننے، جو ہم میں وہ آپ نے نہیں ماننے۔ لیکن یہاں مجادلہ مباحثہ اور مناظرہ نہیں ہے، تو حقائق ہیں جو اس وقت ہم تو بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ واقعہ موجود ہے، تو جب اگر ہمارے ہاں جب یہ واقعہ موجود ہے تو ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ عشق میں، یعنی جناب ویسے کرنے نے عشق میں دانت توڑ لیا، یہ اہل تشیع کا واقعہ، تو ہم تو یہ عشق امام حسین علیہ السلام میں ماتم داری اور زنجیر زنی کرتے ہیں، اسے کسی پہ ٹھوستے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی آیت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لکم دینکم ولی دین، کہ جب خدا یہ کہتا ہے، ہمارے رسول یہ کہتے ہیں کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، تو آپ کسی پر امپوز نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کو۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اپنا ہر مسئلوں کو اجازت ہے وہ اپنے طریقے سے، لیکن انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ اور اتحاد بین المسلمین کے دامن کو ساتھ رکھتے ہوئے، تاکہ ملک پاکستان جو متحمل نہیں ہے ان باتوں کا، ہم جن کرائسس سے گزر رہے ہیں۔ تعزیے، پنجے، جھولے نکالنا، مہندی نکالنا، زیورات برآمد کرنا، یہ تمام کی تمام بدعات ہیں، ان کو بدعات سے تصور کیا جائے گا، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ دین اسلام کو بدنام کرنے کی
कोशिश की जा रही है, बल्कि दीन इस्लाम बदनाम हो रहा है अहले तशय्युअ मकतबा फिक्र की जानिब से। इस हवाले से इंजीनियर साहब क्या फरमाते हैं, क्लिप आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये जो आप कह रहे हैं ना, ताज़िए, आग पर मातम, कोयलों पर मातम, जंजीर जनी, ये सब की सब चीज़ें जो है ना जी, ये इस्लाम में बिदात है और ये टैबू है और इस्लाम की बदनामी का बायस है। जी रामा साहब, इस हवाले से क्या फरमाएं? देखिए, पहले तो ये है कि बिद्दत की डेफिनेशन करनी पड़ेगी कि बिद्दत कहते किसे, ठीक है। अपना अगर इस्लाम जो है ना बड़ा अपना पसंदीदा सा मज़हब है और इसमें ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है किसी किस्म का, और अपना क्या, दोबारा ज़रा रिपीट कीजिएगा सवाल को। झूले, हाँ, पंजे, ये देखिए, हाँ ये ताज़ी, ये सारी की सारी सिंपल निस्बतें हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बेगोरो कफन दफन हुए, हम वो निस्बत करते हैं कि मौला हम करबला में होते तो आपका जनाजा होता, हम इस तरह नहीं। ये झूला, ये हसरत है जनाब रुबाब अलैहिस्सलाम की कि मेरा बेटा करबला में 6 माह का मारा गया, तो हम वो हसरत निकालते हैं। ये मेहंदियाँ, ये करबला में कोई शादी नहीं हुई जी कि हम कहें कि शादी हुई है, नहीं, ये हसरत है जनाब उम्मे फरवा की, जो चाहती थी अपने बेटे की शादी करना। जी हाँ, तो ये हसरत है, दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है हाँ, इसका। ये आपके कायद है, आपकी हसरत है, बल्कि उनकी हसरत हाँ, थी, उनकी हसरत जो जिसे आप हम पूरी कर रहे हैं। हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आले मोहम्मद हमसे राजी हो। मुझे लामा साहब, अब जाहिर है कि हमने अगली सवालात की जानिब बढ़ना है, और जो अलम के सामने आप सजदा करते हैं, अलम के सामने झुकते हैं, नजर न्याज रखते हैं, और ये जो पंजा है, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। लेकिन ये जो ताज़ी हैं, ज़ियारात हैं, मेहंदियाँ हैं, छूले हैं, डोरियाँ हैं, पंजे हैं, इनके ज़ियारात भी ज़रा हमारे नाज़रीन को करा दीजिए, और इस हवाले से ज़रा बताते भी जाइए कि आपके क्या अकायद हैं। तो ज़रा मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा। जी नाज़रीन कराम, आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये तमाम ज़ियारात हैं, और जिन ज़ियारात को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बिदत बोलते हैं और बिदात हैं उनके नज़दीक, और इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आज हम अहले तशय्युअ मकतबा फ़िक्र के हवाले से उनकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और उनकी जानिब सवाल भी रखे हैं, इस हवाले से वो क्या जवाब देते हैं। अलामा साहब बताइए, ये मतलब ये ताबूत है जिसे हम मखसूस है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, ठीक है, ठीक है, और इसीलिए ये जस्ट लाइक जो लोग ज़ियारत के लिए करबलाए मौला नहीं जा सकते, तो हम वो कोशिश करते हैं कि चले हम सलाम करके कहते हैं मौला हम आपकी ज़ियारत को सलाम कर रहे हैं, हमें करबला बुला लीजिए। ठीक, ये एक नज़रिया है, ये हमारा अकीदा है, ये आपका अकीदा है, उनके नज़दीक बिदअत है। हाँ, वो बहुत सी बिदात ऐसी हैं जो अपना हर मसलक में मौजूद होंगी, ठीक है, लेकिन मैं किसी के मसलक की बिदअत की बात ही नहीं करता। आप बस अपने अहले तशय्युअ की नुमाइंदगी कर रहे हैं ये, और इस हवाले से बताएं। ये ताज़िया है, ताज़िया हमने रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शबीह बनाई हुई है कि जैसे करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शबीह है कि जो लोग करबला नहीं जा सकते तो वो इसे सलाम करके जो है वो अपनी उस तस्कीन को पूरा करें। ठीक है, ये झूला है, सही है। ये झूला है, तो ये निस्बत है इसकी हज़रत अली असगर के साथ, ठीक है, कि हज़रत रुबाब की हसरत है, तो हम उसे जो है वो पूरा कर रहे हैं। और इसी तरह ये ताबूत है। अब देखिए ना, ये हमारे पास खाना काबा का मॉडल भी है। जी जी, ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते ये हैं, खाना काबा का मॉडल है। तो अब हम आप इस तरफ नमाज नहीं पढ़ना शुरू हो जाते, हम इसकी तरफ रुख करके तो नमाज नहीं पढ़ते ना, ऐसा होता तो नहीं, नहीं, नमाज तो उधर ही पढ़नी है ना जिधर सारे मुसलमान पढ़ते हैं। लेकिन आपके यहाँ कोई ऐसा पढ़ता तो नहीं है। ये खाना काबा का मॉडल है, 13 रजब के लिए बनाया गया, ठीक है, सही, सिर्फ, और ऊपर लिखा हुआ है कि जाए विलादत मौला अली, इसके अलावा कोई नहीं। ये मॉडल, अब इसकी तरफ रुख करके नमाज तो नहीं पढ़ी जा सकती, चाहे मॉडल है, निस्बत है। सेम पोजीशन ये हमारी ज़ियारात की है कि ये मॉडल्स हैं हमारे नज़दीक, इनकी अपना हम इनकी तकरीम करते हैं। अच्छा, मैं उसकी मिसाल ये दे दूं कि एक परचम है, पाकिस्तानी परचम है, ये किसी मुल्क का परचम है, तो वो परचम कपड़ा तो कपड़ा ही होता है ना, लेकिन जब वो पाकिस्तानी परचम बन जाता है तो उसकी इज्जत तकरीम ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि उसकी निस्बत होगी पाकिस्तान के साथ। तो ये भी लकड़ियाँ तो आम लकड़ियाँ ही होती हैं, ताबूत आम लकड़ियों से बनता है, या झूला या कोई चीज़, लेकिन जब इनकी निस्बत हो जाती है अपना इमाम हुसैन के साथ या झूले के साथ या उसके साथ, तो वो उसकी इज्जत बन जाती है, वो हम उसकी तकरीम। बिल्कुल ठीक है। जरा मैं आगे जरा मुझको ले चलिए आप, जरा होगा तो मुश्किल, लेकिन क्योंकि मैं बहुत सारी ज़ियारात देख रहा हूँ, ताज़ी देख रहा हूँ, और
इस हवाले से आप मुझे बताइए ये सब चीजें क्या है भाई। मैं वैसे एक ये ताबूत जो है ये मखसूस है इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए, ठीक है ठीक है। और ये जनाजे पे तीर बरसाए गए थे जनाजे, और ये आपके पीछे जो है ये ताजिया मौजूद है, ताजिया है, बिल्कुल ठीक है। और वो पंजा, नाज़रीन कराम, पंजे के हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब क्या फरमाते हैं, क्लिप आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हमारे जो शिया भाई हैं उनके घरों में आप देखेंगे उन्होंने वो गाजी बास का वो पंजा लगाया होता है, लोहे का, स्टील का बना हुआ। तो क्या मौला अली जब 5 साल तक, ऑलमोस्ट 5.5 साल तक खलीफा राशिद रहे हैं, तो रसूलुल्लाह के पंजे की शबीह बना के उन्होंने अपने घर के ऊपर या मस्जिद नबवी में या कूफे की जामे मस्जिद में लगाई थी? टाइम क़यामत तक जे जवाब देना जे इस गल दा। तो सरकार जे हुजूर दा पंजा नहीं है ना, ते और ते कोई पंजा शाही कोई नहीं जी। ये हमारे नज़दीक ये अलम का ताल्लुक क्योंकि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ है, और हम ये कहते हैं कि ये जो पंजा हम देते हैं ये हज़रत अब्बास का वो हाथ है जो करबला में काट दिया गया था। तो इसका ये नहीं है कि इसे हम कुछ और कहते हैं या क्या है, सिंपल ये निस्बत है करबला के उस अलम की जो हज़रत अब्बास के हाथों से जब बाजू कटें तो वो अलम यकीनी तौर पे आप अपना ये वो जानते हैं कैसे पहुंचा। तो यकीनी बात है इस पंजे का ताल्लुक जो है वो हज़रत अब्बास, क्योंकि मौला कायनात भी तो सिपा सलार रहे ना, और रसूल खुदा के दौर में आपने ही अलम हासिल किया है। हाँ, तो ऐसी बात नहीं, ये सिर्फ करबला की उस याद को ताज़ा करने के लिए है जो करबला में निस्बत है हज़रत अब्बास के बाजुओं के साथ। बाहर इंट्रो के बाद मैं अलम दिखला रहा था नाज़रीन को, उस अलम के करीब बढ़ेंगे और अलम के हवाले से जो बिदात पाई जा रही हैं आप में उस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन कराम, अभी हम अलम के पास जाते हैं और जो अलम के हवाले से अहले तशय्युअ में बिदात पाई जाती हैं, क्योंकि हम इस वक्त कसरे बतूल इमाम बारगाह में मौजूद हैं, और जो जाहिर है कि एक आम तसव्वुर राइज है हमारे यहाँ कि अहले तशय्युअ बिदती हैं और इनमें बिदात पाई जाती हैं, अलम के सामने झुकते हैं, नजर न्याज रखते हैं, अलम की जगह को सजदे की जगह बना रखा है और अलम को सजदा भी करते हैं। उस हवाले से हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये अलम को सजदा करते क्यों हैं, अलम को सजदा करना क्या जरूरी है इनका। अल्लामा साहब मुझे बताइए कि अलम को सजदा क्यों करते हैं आप लोग। पहली बात तो ये है कि अपना मैंने कहा है कि सजदा जो है ना वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, ठीक है, कोई सजदा अलम को नहीं मैंने देखा लोग आके झुकते हैं, चूमते हैं ना। वो चूमना और चीज है, चूमना माथा माथा अगर कोई बंदा रखता है तो उसकी अपनी मर्जी है ना। अहले तशी के उसूल में उसूल दीन में ये चीज़ शामिल नहीं है कि आपने अलम मुबारक को सजदा करना है, ताज़ीम है, क्योंकि इसकी हज़रत अब्बास के साथ निस्बत है तो हम इसकी इज़्ज़त करेंगे, तकरीम करेंगे, क्योंकि इस्लाम में अक्सर चीज़ें निस्बतों की वजह से ही हैं, निस्बतों की वजह से ही है, तो इसलिए हम तो सिर्फ इनकी ताज़ीम करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है सजदा करने का, नहीं, यानी यहाँ लोग आते हैं सजदा नहीं करते, दुआ मांगते हैं, दुआ मांगते हैं कि, और दुआ भी, दुआ का तरीका क्या है, दुआ ये नहीं कहते, दुआ कहते हैं कि परवरदिगार आलम तुझे वास्ता है हजरत अब्बास का, वसीला, हाँ वसीला करते हैं कि तुझे वास्ता है हजरत अब्बास का, तुझे वास्ता है हजरत इमाम हुसैन का, तुझे वास्ता है फलां का, तुझे वास्ता है जो कायनात में सबसे आला हस्तियां हैं उनका वास्ता है हमारी दुआ, और ये तरीकेकार है। और लोग मुरादें लेके आते हैं। अल्लाह खुद कहता है कि मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। ठीक है, तो जब हम मानते परवरदिगार आलम से हैं तो ये वसीले हैं। इस्लाम में वसीला है, हाँ इस्लाम में वसीला है, यकीनी बात है, वसीला है, ठीक है, इस्लाम में वसीला है, बिल्कुल तो ऐसे तो नहीं हो सकता। और यहाँ जो नजर न्याज रखा जाता है भाई, नजर न्याज रखा नहीं जाता, बाज लोगों ने मन्नतें अपनी मानी होती हैं। जब जैसे मैंने कहा अभी कि दुआ मांगी कि मालिक तुझे वास्ता है हजरत अब्बास का कि मेरी फलां मन्नत को पूरा कर दे, जब वो मन्नत पूरी होगी तो वो बंदा खुशी के साथ यहाँ पे आके कुछ तकसीम करेगा, यहाँ पे खड़े है, तो जस्ट लाइक वो ऐसी बातें, अब उसे वो किसी और सेंस में ले लिए जाए तो अलग बात। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन कराम, मेरे ख्याल से तमाम तर जो शुकूक व शुबहात हैं, अबहाम है, उस हवाले से अहले तशय्युअ की नुमाइंदगी करते हुए अल्लामा तसद्दुक नकवी एडवोकेट ने खूबसूरत ज़ाहिर के गुफ्तगू फरमाई, और जिनको बिदात समझा जा रहा है उन्होंने एक निस्बत के साथ रिलेट किया कि भाई ये निस्बत है, और हमने ताज़िए दिखाए, डोलियाँ दिखाई, मेहंदी दिखाई, और वो तमाम तर ज़रात भी दिखाई जिनको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब बिदात कहते हैं, और उनके नज़दीक ये तमाम बिदात हैं। जुलजिना करबला में क्या किरदार रहा, जुलजिना के दफन करने की जगह को इन्होंने सजदागाह बना रखा है, जुलजिना का पेशाब भी पीते हैं ये,
क्योंकि इस वक्त मैं इमाम बारगाह में मौजूद हूँ और ये बातें इनके सामने कर रहा हूँ कि अहले तशय्युअ जुलजना का पेशाब पीते हैं, जुलजना को सजदा करते हैं। बल्कि हमारे यहाँ तो ये भी है कि जुलजना की करीब से गुजरे शादीशुदा जोड़ा तो निकाह टूट जाते। ये तमाम तर खुराफात, ये तमाम तर बातें, ये तमाम तर चीज़ें बिदात से तसव्वुर की जाएंगी और ये बिदात ही हैं। हम जुलजना के पास जाएंगे और जहाँ जुलजना का बाकायदा कब्रिस्तान है वो भी दिखाएंगे, जुलजना को मरने के बाद कहाँ दफन किया जाता है वो भी दिखाएंगे, और जब ये जुलजना को सजदा करते हैं इस हवाले से भी इनकी राय लेंगे। ये जुलजना का पेशाब क्यों पीते हैं इस हवाले से हम बात करेंगे, मगर जुलजना के पास जाकर हमारे साथ रहिए। नाज़रीन कराम, अल्लामा तसद्दुक़ नकवी एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। जिन बातों को, जिन मामलात को खुराफात कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये तमाम चीज़ें जो है ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों के हवाले से अल्लामा साहब ने अपनी राय भी दी और ज़ाहिर जो हक़ाइक़ हैं इनके मसलक के हवाले से जो एक छाप है इन पर उसको भी अल्लामा साहब ने अपने तय क्लियर किया और ज़ाहिर के मसलक के अहले तशय्युअ की नुमाइंदगी भी इस वक्त कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं वहाँ जहाँ जुलजना को दफन किया जाता है और उसको दफन करने के बाद उस जगह पर सजदा भी किया जाता है। ये तमाम तर इल्जामात जो हैं ये जाहिर है कि इनकी तरदीद कर सकते हैं या इस हवाले से अल्लामा साहब तस्दीक कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम आपको उस इहाते में लेके जा रहे हैं कि जहाँ जुलजना होता है। मुहर्रम के दिनों में आप ये ज़ियारत देखते हैं कि जब ये बरामद होती है तो लोग बहुत दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर इस जुलजना को देख सकते हैं। मैं अल्लामा साहब जरा तल्ख सवालात करने जा रहा हूं और ऐसे सवालात शायद आज से पहले आपने सोशल मीडिया पर सुने हो, मगर जवाब देने की कुव्वत, ताकत या अंदर ही अंदर आप में हिम्मत हो या ना हो अभी पता चल जाएगा। सबसे पहला सवाल मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं कि इस जुलजना का ये निस्बत है, ये एक घोड़ा है लेकिन जुलजना से निस्बत है, इसका किरदार क्या रहा है मैदान करबला में? जुलजना असल में ये वफा की अलामत है हमारे लिए तो कि करबला में इस जुलजना ने, इस यानी घोड़े ने जिसे हम आप निस्बत दे रहे हैं करबला के जुलजना के साथ, इसकी वफा की मिसाल ये है कि इसने अक्सर तीर अपने जिस्म पर पेवस्त करवाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बचाने की खातिर। तो ये असल में वो उसकी वफा की निशानी है जो हम इसी तरह 1400 साल से हम ये इसी तरह अगर कर रहे हैं तो ये हमेशा चलता ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये वफा की अलामत है हमारे लिए। बिल्कुल सही है। मुझे ये बताइए कि जो शिया हजरात हैं, जो लोग अहले तशय्युअ में बीमार पड़ जाते हैं, शिया लोग जुलजना का बचा हुआ खाना उस बीमार को देते हैं और वो बीमारी से सेहतयाब हो जाता है। इस बात में कितने सदाकत है? ये आपके मसलक पर इल्जामात है, इसकी तरदीद करें या तस्दीक करें। मैं बड़ा क्लियर कहूँ कि ये हमारे लिए इहतराम के काबिल तो है क्योंकि इसकी निस्बत करबला से है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है कि इसका बचा हुआ खाना हम किसी शिया मोमिन को देते हैं या वो खाते हैं और वो नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं, ये सिर्फ ऐसे इल्जामात हैं ताकि तशय्युअ को बदनाम किया जाए। करबला में अल्लामा साहब मुझे बताइए कि यही घोड़ा था? नहीं, ये घोड़ा नहीं था। तो क्यों रखा हुआ है आपने? जनाब, जो अपना जो मस्जिदें हैं जिनमें हम नमाजें पढ़ते हैं, क्या ये वही मस्जिद है जो मस्जिद नबवी में है? मस्जिद नबवी की सारी तशबीहें हैं जी, ठीक है, ठीक। मस्जिद नबवी की सारी तशबीह है, ठीक है। और हम खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, खाना काबा सामने नहीं होता जी, तो हमारी अपना नजर में सिर्फ खाना काबा होता है। तो ये तशबीह है खाना काबा की, जैसे हम खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, मस्जिदों की तशबीह है मस्जिद नबवी की। इसी तरह ये जुलजना तशबीह है उस जुलजना की जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, बिल्कुल, यानी निस्बत है। निस्बत है, जिस तरह से कुर्बानी का जानवर, जी कुर्बानी का जानवर, हाँ ये कुर्बानी का जानवर देखे ना। अब कहा जाता है कि जनाब जो ही ज़िलहज शुरू होगा तो कहा जाएगा ये जानवर लेना है, इसमें दाग ना हो जी, इसमें ये बेदाग होना चाहिए जी, ये लूला लंगड़ा ना हो जी, फिर जनाब इसे मारना ना, इसे जोर से ना खींचना। क्यों भाई? ये वो दुम्बा तो नहीं है जो इब्राहिम और इस्माइल के लिए आया था, ये वो नहीं है। हाँ, तो कहते हैं जनाब वो नहीं, क्योंकि निस्बत है। बाबा ये भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे के जुलजना की निस्बत है। बिल्कुल सही। हाँ, कुरान कहता है ये रसूल मुअज़्ज़म के जुलजना की निस्बत है, इसलिए इसका एहतराम भी उतना ही जरूरी है जितना कि हम कम से कम हजरत इब्राहिम और इस्माइल के उस दुम्बे का करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये भी बताइए, इंतहाई कंट्रोवर्शियल सवाल है ये, और ये आपके मसलक पर एक छाप भी है और शायद बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, या आपके मसलक में जो जमातें हैं, हो सकता है कि कुछ ऐसी जमात हो या कोई ऐसी जमात हो वो ऐसा करती भी हो।
जुल्जिना का पेशाब पिया जाता है तशय्युअ मकबरे से। नो, अब देखें, मैंने आपसे पहले कहा जब वो झूठा खाना जो वो दाना या वो खाता है वो नहीं होता तो जुल्जिना पेशाब तो निजस ही है, ये चीजें हैं। हाँ, वो लेकिन ये गलत है, प्रोपोगेट है, सिर्फ तशय्युअ को बदनाम करने की साजिश है। ऐसी यानी कोई ऐसा बात कुछ भी है ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, आपने कभी देखा भी ही नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता, हुआ क्या, कभी होगा भी नहीं। अच्छा, ये कौन सी वो अब ऐसे, ये सिर्फ हमें बदनाम करने की साजिश है और बिल्कुल गलत बात है, ऐसा ना कभी हुआ है ना होगा। मुहर्रम में या आम दिनों में, आम महीनों में जब कोई शादीशुदा जोड़ा जुल्जिना की करीब आते हैं उसका निकाह टूट जाता है। आपके ख्याल से आप इस बात को कहां तक देखते हैं? सर देखें, गुजारिश ये है कि निकाह इतनी कमज़ोर चीज़ तो है नहीं कि वो जुल्जना के करीब आके टूट जाए। अपना आप रोज़ाना सैकड़ों घोड़े देखते हैं सड़कों पे दौड़ते हुए, वो घोड़े देखने से तो किसी का निकाह नहीं टूटता, हालांकि वो बगैर कपड़ों के होते हैं। ये तो फिर मुहर्रम में हम बाकायदा तौर पे सजा के लेके आते हैं, तो अगर उन घोड़ों के को देखने से निकाह नहीं टूटता हो तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलजरा की शबीह से निकाह कैसे टूट सकता है? ये सिर्फ अपना चीज़ें हैं, प्रोपोगेट किया गया है ताकि लोग करीब ना आए। बिल्कुल सही, लोग करीब ना आए। बिल्कुल सही। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा नहीं जाता था कि करीब ना जाना मोहम्मद के, जादूगर है। जी हाँ, जी हाँ, माज़रत। तो वो करीब जब क्यों, मकसद क्या था, जो करीब जाता था वो मोहम्मद का ही सल्लम का हो जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यानी आपका कहना यह है कि जो इसके करीब आएगा वो इसका हो जाएगा? यार वो इससे मुराद ये है, उसे पता लगेगा हकीकत क्या है। हकीकत ये नहीं है कि हम झूठा खाना खाते हैं, हकीकत ये नहीं है कि इसका पेशाब पिया जाता है, हकीकत ये नहीं है इससे सजदा किया जाता है, हकीकत ये नहीं है कि जनाब हम इसकी इबादत करते हैं, ना, इबादत परवरदिगार आलम की है। अल्लाह साहब, मैंने एक सोशल मीडिया क्लिप देखा इंतहाई मादरत के साथ। अब आप ये ना कहिएगा वो तशय्युअ नहीं थे। अब जिस जगह पर जुल्जिना को बांध रखा है उस जगह को उसने सजदा गाह बना दिया। वो शख्स बाकायदा सजदा कर रहा है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। आप कहें तो मैं अभी चलवा देता हूं, वो तशय्युअ है भाई, वो सजदा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, तशय्युअ का अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह, तशय्युअ का अकीदा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है, तशय्युअ का अकीदा है अली वलीउल्लाह। अगर कोई बंदा जुल्जना की जगह पे जाके सजदा करता है तो वो शियत उसका ताल्लुक नहीं है, तो आप कहेंगे वो सुन्नियों का था? नहीं यार, वो हो सकता है उसका अपना अकीदा हो, मैं उसे फिक्र जाफरिया से नहीं कहूंगा। वो खुद को कह रहे हैं वो हो सकता है। आप एक के कहने से क्या होगा भाई? नहीं, हम मेरे कहने से नहीं, हमारे यहाँ 99 बल्कि 100% लोग ऐसे हैं जो ये बातें नहीं करते जो मैं कह रहा हूँ। गैर मुल्की लोग जब उसको सजदा करते हुए देखेंगे वो तो यही समझेंगे कि पाकिस्तान के शिया ऐसे हैं भाई। लेकिन उसे अब मेरे जैसा बंदा जो यहाँ पे मौजूद है वो कह रहा है ना कि वो गलत है, डिनाई कर रहा हूँ मैं उस बात को कि ऐसा नहीं हो सकता, वो गलत कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही। और जो बंदा भी परवरदिगार आलम के मुकाबिल किसी को लाएगा वो गलत है। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी अहले तशय्युअ जो हैं वो रब परवरदिगार अल्लाह तबारक व तआला, वो रब को मानते हैं। हाँ, अल्लाह वाहदहु शरीक है, वही सजदे के काबिल है, अहद है, कुल हुवल्लाहु अहद, ahad है, सजदा फकत परवरदिगार आलम की जात को है। बिल्कुल सही, बेहतरीन पे। मुझे ये भी बताइए कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जब अजल आ जाती है और ये मर जाता है, इसको आप कहाँ दफन? अच्छा, हमारे यहाँ अब हमारे यहाँ मैं अच्छा, ये भी कहा जाता है बाकायदा कब्रिस्तान बनाया हुआ है। नहीं, मैं अब आप अल्लाह की तरफ से आप खड़े हैं तो आज ये भी बात हो जाएगी। यानी हमारे यहाँ मसले के अहले तशय्युअ की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त। 3 से 4 जुल्जना हमारे उनकी अपना इंतकाल हुआ, ठीक है, 10-15 साल के। ठीक है। अच्छा, ये जहाँ पे आप खड़े हैं ना, यहीं पे दफन किया गया है हमने जुल्जना, इसी जगह पे। अच्छा नाज़रीन किराम, मैं आपको बताता चलूं, इसी जगह एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, अहले तशय्युअ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जहां इस वक्त जुल्जना खड़ा है इसी के पांव के नीचे जुल्जना दफन है। हाँ, यहीं खड़े हैं, यहीं दफन किया गया। अब ये कोई मुबालगा ऐसे काम नहीं, ना, ये मुबालगा राय नहीं, यहीं दफन किया गया है। और कौन कहता कब्रिस्तान हम बनाते हैं या उस पे, यहीं दफन किया गया है। इंजीनियर साहब, ये तो आपसे भी सवाल है भाई, तो भाई एक जुल्जना के नीचे जुल्जना है भाई। हाँ, नहीं कोई ऐसी, ये सिर्फ ऐसे मसले के अहले तशय्युअ को बदनाम किया जा रहा है ना भाई, अनदेखी, क्योंकि हम तो अनदेखी देंगे। हाँ, इसके नीचे 2-3 जुल्जना है, यानी जो डेथ हुई है उसे दफन किया। अच्छा, तो यहीं पे। हाँ, जब फिर आपने दूसरा जुल्जना दफन किया तो पहले को देखा, नहीं, कुछ भी नहीं था, हड्डियां थी। हाँ, कुछ भी नहीं था। वो यकीनन वो फासला होगा ना, पहले हमने ज्यादा ग्राउंड कर लिया होगा, फिर कम। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब यहाँ पे कहाँ कब्रिस्तान, ये कब्रें बनी हुई हैं,
सही है, बिल्कुल सही। ये बिल्कुल यहीं पे दफन किए हैं ये हमने कोई दोनों खबर ही नहीं है लोग। भाई, नाज़रीन कराम आप देख सकते हैं इस वक्त कि यहाँ खबर ही नहीं है भाई। आप अहमद नसीर ऑफिशियल के इस प्लेटफॉर्म पे डिजिटल मीडिया की हिस्ट्री में एक अनोखा प्रोग्राम देख रहे हैं कि आज से पहले कोई सहाफी, कोई मेजबान ऐसा प्रोग्राम नहीं निभा पाया जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, जो आपको डॉक्टर अहमद नसीर दिखा रहे हैं कि भाई ये जुलजना का कब्रिस्तान है, मगर कब्र नहीं बनी हुई। जैसे इंजीनियर साहब कहते कब्रों को जमीन के बराबर करो, वही कर दी ना आली भाई, कर दी, ये तो हो गई। अच्छा, यानी प्रोपोगेट किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है तशियों को, ना ये पेशाब पीते हैं, ना झूठा खाना खिलाते हैं, ना ये खबरें बनाते हैं, ना वहां सजदा करते हैं। तो फिर ये कहता कौन है? ये वो कहते हैं जो हमारे मुखालिफ होंगे, लेकिन हमारे भाई हैं। देखें, जो हुसैन से मोहब्बत करता है उसका कौन मुखालिफ होगा, मुझे लगता है। अब यही तो बात है ना, अब ये जुलझला का ताल्लुक भी तो हुसैन से है, निस्बत से। जी हाँ, जी हाँ, है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर मैं तो कह रहा हूं, तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना, अब ये तो अब अपना हर इंसान का एक अपना अच्छा, मैं तरीका इबादत है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से एक बात भी आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शिया के आलिम हैं, वो उनके दोस्त हैं, वो उनकी खिदमत में हाजिर हुए। अब वो गालिबन शिया नहीं रहे, मुबैना तौर पर उनकी खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने कहा कि भाई मुहर्रम के दिनों में मेरा बच्चा चाहता था कि जुलजना के नीचे से गुजरूं। अच्छा, लोग गुजरते हैं, आप क्या गुजरते हैं जुलजना के नीचे से? हो जाते हैं, हो जाते हैं, ठीक है, ये तो हक़ाइक़ बता जो रहे हैं। बात हाँ, जो बात है वो है। अच्छा, क्या फायदा क्या होता है जुलजना के नीचे? अच्छा देखें, मैं एक बात आपको बताऊं, हर बंदे इस तरफ। हर शख्स का एक अपना नजरिया है ना, जी। वो अकीदत होती है किसी के ठीक साथ, वो जस्ट लाइक ऐसे अकीदतन इसमें कोई वो नहीं है कि शिर्क किया जा रहा है, जस्ट अकीदतन वो जुलजना के नीचे से बच्चे को गुजार देंगे। फायदा क्या होता है? फायदा अब वो जो गुजार रहा है ना, उसके जहन में ये है कि ये क्योंकि इसकी निस्बत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलजना के साथ, तो हो सकता है मेरा बच्चा बीमार है कोई, वो कहता है हो सकता है शिफा मिल जाए। ठीक, जैसे अब देखें, शिफा देने वाली तो परवरदिगार आलम की जात है, हाँ रब की जात है। जैसे अब हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं या बाकी मुसलमान हैं, लोग अपना क्या कहते हैं मज़ारों पे जाके दुआएं मांगते हैं, लोग जनाब अपना हिंदू जो है पत्थर के सामने जाके अपनी मन्नतें मांगते हैं, सिख उनका अकीदा है। तो ये जस्ट लाइक एक अकीदा है। अगर मसलक तमाम मसालिक एक जैसे हों तो फिर मसलक ही ना हो, ये मसालिक की मुख्तलिफ इसी वजह से मुख्तलिफ है। तो एज सच ये नहीं है कि सजदा किया जाता है और किया है क्या है, ये जस्ट लाइक एक किसी बंदे का अकीदा है कि वो ये समझता है कि अगर ऐसा करूंगा तो मैं मेरे लिए बेहतर है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के दोस्त, लेकिन इससे ये मैं आपको क्लियर करूं कि ये वो नहीं है कि अहले तशय्यी के उसूल दीन में ये चीजें शामिल नहीं है। हाँ, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। लेकिन अहले तशय्युह का अलग दीन नहीं है ना। हाँ, तो जुमला ही गलत हो गया, अहले तशय्युह का दीन। हाँ, गलत हो गया ना, बिल्कुल गलत है। ये तो दीन इस्लाम ही है, दीन इस्लाम है। हाँ, मसलक के अहले तशय्यी में भी ये चीजें नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये अब अगर कोई बंदा अपने तौर पे कर लेता है तो हम उसे शियत के साथ तो नहीं ना कर सकते। ठीक है कि जनाब ये शिया, यानी जैसे यानी मुहर्रम के जुलूस होते हैं, बहुत सारे अहले सुन्नत के लोग भी वहां आए हुए होते हैं। जी बिल्कुल, ये तो कि वो बिल्कुल सही। अच्छा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से मैं एक वाकया भी आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं, और सबसे पहले आपकी इजाजत तो मैं क्लिप चलवाना चाहता हूं। नाज़रीन कराम, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की खिदमत में जब उनका एक शिया दोस्त मुबैना तौर पर हाजिर हुआ, क्या वाकया सुनाता है, क्लिप आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पाकिस्तान में एक बहुत बड़े आलिम है, उनके लिए ज़रा बाद में मुश्किल ना हो जाए मामलात, मैं उनका नाम लिए बगैर बताता हूँ। वो कहते हैं मैंने अपने बेटे को समझाना था, ये घोड़े के नीचे से जो गुजरते हैं, वो कहते हैं हुआ ये कि एक दिन वो मुहर्रम के जुलूस में घोड़े के नीचे से गुजरा तो घोड़े ने उसको एक ठोकर लगा दी, दलती मारी। तो कहता बाबा ये हुआ। उसने कहा अच्छा हुआ तुम्हें ये ठोकर लगी है ताकि तुम्हें ये पता चले कि ये हज़रत हुसैन का जुलजना नहीं है जिसने तुम्हें ठोकर मारी है, ये इनका बनाया हुआ जुलजना है। जी, क्लिप आपने देखा, मैं वाकया आपसे शेयर कर रहा हूँ। उनका दोस्त उनकी खिदमत में हाजिर हुआ, शिया आलिम है बहुत बड़े, नाम उन्होंने नहीं लिया, इसी का इराज में रखा। उनका बेटा मुहर्रम के दिनों में जुलजना के नीचे से गुजरने वाला था, जुलजना ने टांग मार दी, वो गिर गया। तो उन्होंने फिर शियत को छोड़ा और ये कहा कि बेटा अगर ये इमाम हुसैन का घोड़ा होता तो तुमको कभी टांग ना मारता। देखिए ये मेरा तो ख्याल इस पे नो कमेंट्स कहना चाहिए, क्योंकि है तो जानवर ना, हाँ हाँ, है तो जानवर ना। हाँ। अब इसे हम वो इसे जानवर को जानवर एक जुमला आपकी इजाजत हो। करबला में तमाम इंसान जानवर बन गए थे और जानवर इंसान बन गया था, वफा की सूरत। तो ये अपना ये तो ऐसे ही कि वो अगर ये होता तो ये आई थिंक नो कमेंट्स इस पे, बिल्कुल बात ही नहीं है।
فضولیات میں سے ہے میرا خیال۔ بالکل صحیح ہے۔ اور اگر وہ ایسی کوئی بات ہے تو وہ مولانا کا نام بتائیں ذرا، میں ان مولانا سے گفتگو تو کروں، پوچھوں تو صحیح۔ انہوں نے خود نہیں بتایا، وہ نام سیدھا راز میں میں رکھ وہی دیا۔ کہہ رہا ہوں نا، انجینئر صاحب سے خود بھی پوچھوں نا۔ آپ کا بہت شکریہ علامہ صدوق نقوی ایڈوکیٹ صاحب، Thank آپ you, نے sir. خصوصی وقت دیا، قیمتی وقت دیا، جی، اور بالکل۔ ایسے ظاہر ہے جو کنٹروورشل سوالات ہیں آپ نے ان کے جوابات انتہائی خوبصورتی کے ساتھ دیے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین Thank کرام، you. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر احمد نصیر کو اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، لیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ آپ آنے والے لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکے۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ ناصر۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔